Hello students, how are you? So let's start with today's biology class. In the previous session we have started with Morgan's as we are discussing with the chapter 5 principles of inheritance and variation, and in that we were discussing about Morgan's contribution in genetics on the basis of chromosomal theory of inheritance. So first contribution was linkage, that we have discussed already. Second was the linkage group. So linkage groups is what? A linkage group is linearly arranged group of linked genes which are normally inherited together except for crossing over. What does it means? Means the linkage group is the number of genes which are present on one chromosomes which are inherited together except for the crossing over, when they get separated because of crossing over. For example, if this is a chromosome, okay, and this is gene A, this is gene B, this is gene C, and this is gene D. For example, this chromosome has 4 genes, and all these 4 genes, they do not get separated, they just move to the gamete without separation, inherited together in the next generation. So this will form one linkage group. Otherwise they can get separated if this gene E is also present, which may get separated due to crossing over because it is present at the tip or end of the chromosome. तो क्रॉसिंग ओवर के अलावा अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात ना करें, उसके अलावा अगर एक जो जितने भी जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इन अ लीनियर फैशन, इन अ लीनियर मैनर, दैट विल फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप. एंड वी विल नॉट कंसीडर हेयर द होमोलॉग पेयर, क्योंकि होमोलॉग पेयर के ऊपर उसके एग्जैक्टली सेम एलील ही प्रेजेंट होगा, सेम जीन ही प्रेजेंट होगा. तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि लिंकेज ग्रुप इज ऑल द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन लीनियर सीक्वेंस ऑन वन क्रोमोसोम विच आर इनहेरिटेड टुगेदर in the next generation without except for the crossing over. Okay, so this is simple. The number of linkage groups will be equal to the number of chromosomes in one genome. Genome क्या होता है? A single set of chromosome. Single set of chromosome means in case of diploid organisms, every chromosome has its copy which is called as its homolog chromosome. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, वी हैव टोटल हाउ मेनी 46 क्रोमोसोम्स, उसमें से 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स 23 की एग्जैक्ट कॉपी प्रेजेंट होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको आपकी क्लास का एग्जाम्पल दूँ, सो देर आर 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लास and exact copy of each student is also there. So total how many students? 20, but pairs how many? 10, because other 10 are exact copy of yours. Okay, so whatever genes are present on the chromosomes 23, the same genes are present on its homologous chromosomes. तो इसलिए लिंकेज ग्रुप में हम सिर्फ एक ही क्रोमोसोम को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि होमोलोगस के ऊपर बिल्कुल सेम वही जीन्स प्रेजेंट होगी, तो हम उसको डबल कंसीडर नहीं करेंगे. सो दिस इज क्लियर. द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स is always equals to the number of chromosomes in one genome. Okay, for example in case of human, how many chromosomes are there in one genome? 23, क्योंकि टोटल कितने हैं? 46, तो pairs 23 प्रेजेंट है, तो एक जीनोम में कितने होंगे? 23. सो द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन विल बी 23. ऐसे ही पी प्लांट में वी हैव स्टडीड टोटल 14 क्रोमोसोम्स, बट इट इज़ अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो टोटल वन जीनोम में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 7. इट मीन्स द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स in pea plant is equals to 7. Is it clear? This point is very very important. One more point regarding the linkage group is that the number of linkage group also depends upon the size of chromosome. Obviously जितना ज़्यादा साइज का it's not the number, the genes in the linkage group, कि जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा क्रोमोसोम का, उतने ही ज़्यादा उसके अंदर जीन्स होंगे और उतना ही बड़ा वो लिंकेज ग्रुप होगा. साइज़ आएगा यहाँ पे. साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ क्रोमोसोम. इफ़ द क्रोमोसोम साइज इज़ वेरी बिग, देन सो मैनी जीन्स विल बी प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, एंड इफ़ द क्रोमोसोम साइज इज़ स्मॉल, देन लेस जीन्स विल बी प्रेजेंट. जैसे ह्यूमन में अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो बहुत बड़ा साइज़ का होता है, सबसे बड़े साइज़ का, तो उसके ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स. बट इफ़ यू टॉक अबाउट वाई क्रोमोसोम, जो कि ह्यूमन मेल में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, सो इट हैज़ वेरी लेस, अराउंड 231 करके कुछ जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट नहीं है.
तो लिंकेज ग्रुप का साइज़ जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, क्रोमोसोम के साइज़ पे। जितना बड़ा क्रोमोसोम होगा उतने ही बड़ा साइज़ होगा उसके लिंकेज ग्रुप का। मीन्स कितने जीन्स एक लिंकेज ग्रुप में प्रेजेंट है, दैट इज़ द साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गिवन बाय मॉर्गन टू अस। लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गिवन बाय मॉर्गन in genetics. So let's see the next concept given by Morgan. The next one is crossing over or recombination. It is very very important because it is actually the basis of variation which will leads to evolution. तो इसके इस concept से बहुत help मिली आगे scientists को। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11 जब मैंने आपको मियोसिस का कॉन्सेप्ट बताया था उस टाइम पे। लेट्स डिस्कस इन डिटेल। क्रॉसिंग ओवर इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एज यू नो एवरी क्रोमोसोम हैज़ इट्स कॉपी विच इज़ कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, इट इज़ अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। कॉम्बिनेशन मीन्स व्हेन द टू जीन्स आर प्रेजेंट एट द होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज इट्स कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर वो जीन्स शफल हो जाती हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, बिटवीन द ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है यहाँ पे, जीन्स या डीएनए। मीन्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ही बोलते हैं, और डीएनए से क्या बनता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। एंड this is one of the pair, out of the one pair, this is one chromosome, this is second chromosome. These are actually same, homologous, but I have shown with a different color to make you more clear how crossing over takes place. So the two chromatids of single chromosome are called sister chromatids, and these two red and black are called non-sister chromatids. और जो crossing over है वो हमेशा non-sister chromatids में ही होती है। तो ये जो है I am giving them number 1, 2, 3 and 4. So basically it takes place between 1 और 4, 1 और 3, 2 और 3, 2 और 4. तो उसके बेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉसिंग ओवर होती है। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रॉसिंग ओवर आपको शो किया है। डबल क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है जिसमें 1 और 4 के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, सेकंड और थर्ड के बीच में हो सकती है, या 1 और 3 के बीच में हो सकती है, 2 और 4 के बीच में हो सकती है। ऑलवेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, बिकॉज सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो तो सेम ही जीन्स प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर। सो इट कैन बी द डिफरेंट द यू कैन से द कॉम्बिनेशंस। ओके, here I am showing you single crossing over between second and third non-sister chromatids. So here I have shown always the crossing over takes place at the ends of the chromosomes. क्योंकि अगर आप नॉर्मली भी दो थ्रेड हैं अगर उसको रखोगे आसपास जब बहुत क्लोज आते हैं वो, तो वो हमेशा एंड्स के साथ, एंड्स पे ही उनके बीच में कॉइलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सिमिलरली इज विद दिस, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन दे कम्स क्लोज टू ईच अदर एट द प्रोफेस 1 स्टेज ऑफ मियोसिस 1, तो हमेशा मियोसिस 1 जो है वो प्रोफेस 1 स्टेज में होती है जब उसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। That time there is a chance that the tips or ends of the homologous chromosomes may get exchanged. Okay, so at this time, so here you can see the two non-sister chromatids have been coiled with each other. Now when they just come closer to each other, there is a separation of the segment, ligation, which is called the breakage, and which is called lysis, and then ligation. Two steps are there. Lysis means breakdown of the chromatid, and ligation means reattachment of the chromatid. जैसे समझ गए आपकी, एक ये क्रोमैटिड था, एक ये क्रोमैटिड था, पहले ये यहाँ से कट हुआ, फिर यहाँ पे जाके ये वाला पोर्शन इसके साथ चिपक गया, तो कट होना इस बोलते हैं लाइसिस, और चिपक जाना उसको हम बोलते हैं लाइगेशन। ओके, सो हेयर आई हैव शोन द सिंगल क्रॉसिंग ओवर। वाई इट इज़ कॉल्ड सिंगल? आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो दोनों तरफ क्रॉसिंग ओवर हो रही है। इट इज़ कॉल्ड सिंगल बिकॉज इट इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन टू क्रोमैटिड्स ओनली। अगर इन दोनों के बीच में भी होती तो ये डबल क्रॉसिंग ओवर होती। सो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द ब्लैक पोर्शन हैज़ बिन कट एंड द रेड पोर्शन ऑल्सो हैज़ बिन कट। देर आर स्पेसिफिक इंजाइम्स फॉर देम। बाद में साइंटिस्ट को पता चला था कि कुछ ऐसे इंजाइम्स होते हैं, नेचुरल इंजाइम्स, जो कि लाइगेशन और लाइसिस में हेल्प करते हैं। जब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस, देन आई विल टेल यू, एक्सप्लेन, आई विल इन डिटेल कि
कि कौन से एंजाइम्स होते हैं जो उसको कट करने में हेल्प करते हैं और कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो उसको फिर से स्टिक बाउंड करने में हेल्प करते हैं. सो द रेड पोर्शन विल बी कट एंड ब्लैक पोर्शन विल बी कट. Black portion will reattach to red portion and red portion will reattach to black portion. So here you can see ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे. फर्स्ट और फोर्थ वाला नंबर दिए थे मैंने इनको 1, 2, 3 and 4. So first और fourth will remain intact because there is no crossing over between first and fourth. But second and third you can see the black part have been attached to red one and the red part has been attached to black one here also. ओके, ड्यू टू दिस द जीन्स हैव बीन शफल्ड. ठीक है, तो कुछ जीन्स जो यहाँ पे थे वो वहाँ पहुँच गए, यहाँ के जीन्स वहाँ पहुँच गए, जिसकी वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन रीअरेंजमेंट हो गई जीन्स की. और इसी वजह से वेरिएशन आती है कि वी डो नॉट हैव ऑल द करेक्टर्स एग्जैक्टली सेम एज आर पेरेंट्स, बिकॉज जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, मियोसिस 1 होती है, प्रोफेस 1 होता है, उस टाइम पे जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी वजह से जीन्स की शफलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ न्यू कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं एंड वी आर नॉट एग्जैक्टली सेम एज आर पेरेंट्स. ओके, दिस इज़ द बेसिस ऑफ वेरिएशन, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन. वेरिएशन से ही इवोल्यूशन आई. ठीक है, सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ द पेरेंटल क्रोमेटिड, दिस इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट. जो रिकॉम्बिनेशन से या रीअरेंजमेंट से बना है जीन्स की, उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट. Third one is also called recombinant because it got segment from the black one, and the fourth one is also parental. So it means in case of single crossing over, 50% we will get parental chromatids and 50% we will get recombinants. ठीक है, और इसी के बेस पे, क्रॉसिंग ओवर के बेस पे, फिर जो मॉर्गन था उसने हमें जेनेटिक मैप दिया, जिससे हमें आइडिया मिला कि जीन की एक्चुअल पोजीशन या लोकस जो है वो जीन का क्या है, कौन सी जीन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है. क्योंकि मैंने आपको बताया था देयर इज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन ओवर द क्रोमोसोम्स. दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, इट मे लीड टू सम डिसऑर्डर्स और इट मे लीड टू वेरिएशन. ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट गेव अस द आइडिया ऑफ द क्रॉसिंग द जेनेटिक मैप, कि जीन की लोकेशन के लिए इसने हमें बहुत हेल्प किया. After this I will explain you the genetic map, then you will be more clear. So before starting with the gene map, the next important concept given by Morgan was sex-linked inheritance or criss-cross inheritance. So it is not given in your NCERT book, but still later on when we will study the disorders, then it will help you. That is why I am explaining here. So sex-linked traits are what? These are those characters which are represented by the genes present on sex chromosomes. Here we are taking the example of only human being. Means sex-linked traits कौन से होते हैं? वो genes, वो character जो कि कौन शो करते हैं? वो genes जो sex chromosomes के ऊपर present होते हैं. So as we know in human, male X and Y are the sex chromosome and female X and X are the sex chromosomes. So what is this sex-linked inheritance or criss-cross inheritance? Criss-cross, why we are calling it criss-cross? Let me give you example. Sex-linked trait from father means if we are talking about first generation, the father has X and Y chromosome. So जो character sex-linked character जो father के अंदर present है, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में सन में नहीं जाएगा, उसके गर्ल चाइल्ड में जाएगा, मीन्स उसकी डॉटर में जाएगा, और फिर वो डॉटर से नेक्स्ट जनरेशन में उसके ग्रैंड सन में ट्रांसफ़र होगा. मीन्स फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड डॉटर टू ग्रैंड सन. दिस इज़ द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बिकॉज देयर इज़ अ क्रिस क्रॉस चेंज इन द सेक्स ऑफ द फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. फादर से अपोजिट सेक्स डॉटर में जा रहा है और फिर डॉटर से फादर के ग्रैंड सन में जा रहा है या डॉटर के सन में जा रहा है. दिस इज कॉल्ड द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. व्हेन वी विल स्टडी द डिसऑर्डर्स, जैसे हम सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स जब हम स्टडी करेंगे तो हम वहाँ पे क्रॉस बना के दिखाएंगे आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा ये. सिमिलरली इन केस ऑफ मदर, द मदर विल ट्रांसफर द सेक्स लिंक ट्रेट टू बॉय चाइल्ड. मीन्स मदर अपने अपोजिट सेक्स में ट्रांसफ़र करेगी, दैट इज़ द बॉय चाइल्ड और सन.
और फिर सन से वो नेक्स्ट जनरेशन की डॉटर में जाएगा, मीन्स मदर की ग्रैंड डॉटर में जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर कुछ करेक्टर्स, जैसे वी आर फीमेल, आई एम अ फीमेल एंड आई हैव द करेक्टर्स विच आर सेम एज दैट ऑफ माई ग्रैंड फादर, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। उसी तरह से इफ़ यू आर अ मेल एंड यू हैव सम करेक्टर्स विच इज़ सिमिलर टू योर ग्रैंड मदर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे किसकी वजह से? सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से, क्योंकि क्रोमोसोम जो ट्रांसफ़र होता है, वाई क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था कि द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड इट हैज़ वेरी लेस नंबर ऑफ जीन्स ओवर इट्स सरफेस, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर टू girl to daughter and daughter to grandson, this is called diagenic type of criss-cross inheritance, and in this case from mother to son and son to granddaughter, this is called as diendric. Clear? Father to daughter, daughter to grandson, diagenic, mother to son and son to granddaughter, diendric. So this is all about sex linked inheritance or criss-cross inheritance. Now let's see the gene mapping, how we can find out the gene over the surface of chromosomes. So the next concept is chromosome mapping or gene mapping, which was given by Morgan after his discovery on crossing over. As we have discussed about the concept of crossing over, in which he gave us the idea कि how the two genes can stay together until and unless the crossing over does not takes place between them, ठीक है। तो उसी के बेस पे he considered, he decided an unit, और for example if we want to locate something, अगर हमने एक मैप भी अगर हम देखते हैं, रोड मैप या कोई भी मैप है इंडिया के मैप पे, अब हमें कुछ फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिरसा एंड दिल्ली, तो उसके लिए हम डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर्स वगैरह ये सब यूनिट यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, जीन्स की लोकेशन को फाइंड आउट करना है क्रोमोसोम के ऊपर। तो अब उनके लिए हम कुछ यूनिट तो यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस का ही तो यूज़ कर नहीं सकते, मीटर सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो मॉर्गन हैज़ गिवन एन यूनिट विच इज़ कॉल्ड मैप यूनिट और सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन भी इसको बोलते हैं, सेंटी, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल सी कैपिटल एम इज़ यूज्ड, ओके। तो ये सेंटीमॉर्गन इट वाज गिवन बाय मॉर्गन इटसेल्फ। तो इसके लिए उसने एक बेसिक यू कैन से एक बेसिक कहते हैं ना कि एक वो डिसाइड कर लिया कि जैसे 1% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स इज इक्वल्स टू 1 मैप यूनिट। तो 1 मैप यूनिट किसके इक्वल होता है? 1% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स, मीन्स अगर दो लिंक्ड जीन्स हैं, दोनों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हैं 1%, तो वो एक दूसरे से कितना दूर हैं? 1 मैप यूनिट या 1 सेंटीमॉर्गन। जितना ज़्यादा उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था द लिंक्ड जीन्स विच आर प्रेजेंट टुगेदर हैव मोर चांसेस टू स्टे टुगेदर एज कम्पेयर टू द लिंक्ड जीन्स विच आर प्रेजेंट फार फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि वो जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही वो क्रोमोसोम के एंड्स पे जाते जाएंगे और क्रोमोसोम्स के एंड्स के ऊपर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, द लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू। उसी के बेस पे उसने ये पॉइंट हमें क्लियर किया। टू मेक यू मोर क्लियर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सो वी हैव 3 जीन्स A, B एंड C, और ये जीन्स हमें पता है ये लिंकेज ग्रुप फॉर्म कर रही हैं, मतलब ये तीनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। नाउ वी हैव गिवन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं। सो वी हैव गिवन विद द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द 3 जीन्स, A एंड B के बीच में 10%, B एंड C 5% एंड C एंड A 15%. सो फर्स्ट कन्वर्ट दिस परसेंट इनटू द यूनिट सेंटीमॉर्गन। 10% means 10 centimorgan, 5% means 5 centimorgan and 15% means 15 centimorgan. अब इसके बेस पे हम लोकेट कैसे करेंगे कि जीन्स किस पोजीशन में प्रेजेंट है? हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मॉर्गन ने हमें बताया था कि लिंकेज ग्रुप की जो जीन्स होती हैं वो हमेशा लीनियर सीक्वेंस में ही प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम के ऊपर। सबसे पहले हम A और B का लेंगे, A एंड B वी विल राइट एनीवेयर ऑन दिस लाइन,
एंड वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 10 सेंटीमॉर्गन, क्योंकि इनके बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे हम A लिखेंगे, यहाँ पे B लिखेंगे और यहाँ पे 10 सेंटीमॉर्गन. सेकेंड सिचुएशन इज B एंड C की कितनी है 5%. इट मीन्स दैट C इज समवेयर आउटसाइड द B. हाउ वी केम टू नो कि C यहाँ पे भी तो हो सकता था ना, ये भी तो 5 हो सकता था, क्योंकि हमें थर्ड को भी कंसिडर करना है. थर्ड सिचुएशन में क्या बताया हमें, C और A के बीच में कितना गैप है 15% या 15 सेंटीमॉर्गन. इसका मतलब जो C है वो B और A के बीच में प्रेजेंट नहीं है, वो B और C के बाहर प्रेजेंट है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज़ 15 सेंटीमॉर्गन. क्योंकि ये भी चांस हो सकता था ना कि C इन दोनों के बीच में भी प्रेजेंट हो सकता था. वो कब होता, जब A और C के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी होती 5%. देन वी विल लोकेट C हेयर. ठीक है, बट हेयर वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट द फ्रीक्वेंसी बिटवीन A एंड C इज 15 सेंटीमॉर्गन. It means that the location is like this, first A, then B and then C. तो इससे साइंटिस्ट्स को ये पता लगने लग गया था कि जीन्स जो हैं वो एक लिंकेज ग्रुप की जीन्स कौन सी पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है. तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मॉर्गन ने हमें दिया और उसने हमें जेनेटिक्स में हेल्प किया. इसकी वजह से ही हमें पता चला कि कौन सी जीन कहाँ पे पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, जिसको हम जीन लोकस या जीन लोकाई बोलते हैं. ठीक है, so this is very important concept and you should know how we can find out the position on the basis of the recombination frequency. इस पे क्वेश्चंस रेयर ही चांस होता है कि आते हैं, बट स्टिल द अदर कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू दिस, दैट्स व्हाई आई हैव मेड यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक.